morning, ma'am. Okay, so today, before beginning this very lesson of the very chapter of English, I will ask you some questions, okay, which you have to give me answer. Okay, ma'am. Okay, very good. So tell me, how many of you have visited a zoo? Ma'am, me. Okay, so tell me any three animals which you have seen in that very zoo. Lion, tiger, and elephant. Okay. Okay, then tell me among them, which is your favorite animal? Elephant. Elephant. Okay. So, do you know how that elephant got its trunk? No, ma'am. Don't know? Okay, no issue. We will get to know about this in our chapter. So, students, open your chapter number 5 from your NCERT supplementary reader and open page number 30. Okay, ma'am. Okay. So the chapter we will cover is Golu grows a nose. Okay. Yes, ma'am. Okay, students. Golu grows a nose. This chapter, this story is written by Rudyard Kipling. Who? Rudyard Kipling. Okay. So his full name was Joseph Rudyard Kipling. What was his full name? Joseph Rudyard Kipling. Okay. He was born on 30th December 1865 in Mumbai and क्योंकि उनका बर्थ इंडिया में हुआ था इसलिए उनकी जितनी भी स्टोरीज है उसमें बहुत ज्यादा इंडियन टच है. ठीक है. He was an American generalist. He used to write short story. Okay, he was a short story writer. He was a poet. He was a novelist. Okay, some of his works were The Jungle Book, Mowgli, Legend of the Jungle, the movie, The Adventure of the Mowgli. Poems which he had written were If Fuzz Wuzzy, okay, Boots. Some short stories were The Man Who Would Be the King, Rikki Tikki, Tavi, Mowgli Brothers. And a very important thing to note down is that he also got Nobel Prize in Literature. Okay, और उनकी डेथ कब हुई? 18 Jan 1936 in लंदन. तो ये किसके बारे में था? ये गोलू ग्रोज अ नोज. इस स्टोरी के राइटर कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग के बारे में था. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. वेरी गुड. सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गोलू ग्रोज अ नोज. तो यहाँ पे गोलू कौन है? अब हम लोग इसको जानने के लिए चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, सो ओपन योर चैप्टर नंबर 5 एंड पेज नंबर 30. ओके. There was a time when elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. He goes to the Limbu River to find out more about the crocodile eating habit. Okay, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो कि मेंशन है वो क्या थी कि ये जो स्टोरी है ये तब के टाइम की है जब एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं होते थे. क्या होते थे? बल्गी नोज होते थे. तो बल्गी नोज होते थे. ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ. अब ये जो गोलू है हमें पता चला कि ये गोलू कौन है? एक बेबी एलिफेंट है. ठीक है, जिसकी बल्गी नोज थी और उसके पास हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे. ही यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद क्या पता चला कि ही गोज टू लिम्बू रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट. इसका मतलब कि जो गोलू था उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे. किसके बारे में? क्रोकोडाइल के बारे में. और उसी के आंसर पता करते हुए हम देखेंगे स्टोरी में कि वो लिम्पू रिवर तक पहुंचता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है? तो हमें क्या पता चलता है कि बहुत पहले जो एलिफेंट्स होते थे उनके बल्गी नोज होते थे, उनके ट्रंक नहीं होते थे. ठीक है, और वो बल्गी का मतलब देखिए क्या होता है? Okay, the hard words. Okay, I will write down some hard words which you will face and I will write their meaning. Okay. Okay, ma'am. So word is bulgy. Okay.
बल्गी का मीनिंग क्या होता है? स्वेल्ड अप. ओके, clear? So the second word which we came across is wiggle. Okay, रुको. हाँ. तो हमें क्या पता चला, जो गोलू था जो कि बेबी एलिफेंट था, उसके नोज थे, ठीक है, ट्रंक नहीं थे, जो कि बल्गी था, स्वेल्ड अप था, विगल करता था, उससे वो ट्विस्ट करता था इधर उधर. बल्गी नोज थे, वो इधर उधर ट्विस्ट करता है. और क्या पता चलता है कि उसकी जो नोज है, हिज नोज वॉज कंपेयर टू अ वुड. टू व्हाट? टू अ वुड. इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, and yes, because of that bulgy nose, he was not able to pick up things and he used to wiggle things. Okay, then moving further, there was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose, as I said. Okay, as small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? Okay, ओके, तो हमें क्या पता चलता है, वो अभी किसको क्वेश्चन करता है? टॉल आंटी को. टॉल आंटी कौन है? ऑस्ट्रिच. वेरी गुड. ऑस्ट्रिच को बोलता है आप इतनी लंबी हैं तो आप उड़ती क्यों नहीं और बर्ड्स की तरह. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. ठीक, फर्दर he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty? So यहाँ पे टॉल अंकल कौन है? जिराफ. वेरी गुड. तो जिराफ को वो पूछता है कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है? स्पॉटी मीन्स इतने दाग धब्बे क्यों है? ठीक है. He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? आपकी आंखें हमेशा इतनी रेड क्यों होती है? ठीक है, हिपोपोटामस को क्या डिनोट किया गया है? ह्यूज अंकल. क्या डिनोट किया गया है? ह्यूज अंकल. ओके ओके. सो आगे क्या बोलता है कि he asked his hairy uncle, the baboon. बबून को क्या बोला गया है? हेयरी अंकल. क्या बोला गया है? हेयरी अंकल. हेयरी अंकल से वो क्या बोलता है कि वाई डू मेलन्स टेस्ट मेलन? मेलन्स जो होते हैं वो मेलन्स की तरह क्यों टेस्ट करते हैं? ठीक, तो इसके जवाब में क्या आता है, अब हम ये पढ़ते हैं. ठीक है. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. Golu is a naughty baby, they said. He asked such difficult questions. ठीक है, तो इसके आंसर में क्या होता है कि क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस करता है, तो सारे एनिमल जो ऑस्ट्रिच होती है, जिराफ होता है, हिप्पोपोटामस होता है, बबून होता है, वो सब बोलते हैं कि क्योंकि उनके पास इसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता है गोलू के, तो वो बोलते हैं कि गोलू जो है वो एक नॉटी बेबी एलिफेंट है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस करता है. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. One day, Golu meet the manna bird sitting in the middle of the bush, and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" The manna said, "Go to the banks of the great grassy Limpu River and find out." क्या होता है कि एक दिन गोलू जो होता है वो मैना से मिलता है. ठीक है, जो कि मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में बुश में बैठी हुई होती है. मैना क्या होती है? मैना एक टाइप की बर्ड होती है. क्या होती है? टाइप ऑफ अ बर्ड. यस, वेरी गुड. तो उससे वो बोलता है कि मैना जी आप ये बताइए कि क्रोकोडाइल जो होता है वो डिनर में क्या खाता है? तो मैना बोलती है कि खुद ही क्यों नहीं चले जाते हो लिम्पू रिवर के पास, ग्रासी लिम्पू रिवर के पास, और वहां पे जाके तुम उसी से पूछ लो, जान जाओ. ठीक है, तो आप देखते हैं कि गोलू क्या करता है. गोलू वेंट होम. ठीक, गोलू घर जाता है. He took 100 sugarcane. Okay, listen very carefully. 100 sugarcane, 50 dozen banana and 25 melons. ठीक है, तो 100 क्या लेता है? sugarcane. Okay, 50 dozen banana and 25 melons. ठीक है. Then he said to his family, "Goodbye. I am going to the great grassy Limpu River. I will find out what the crocodile has for dinner." ठीक है. He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. तो क्या होता है कि जो गोलू होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है
और मैना की बात सुन के वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो क्या करता है, 100 शुगर केन लेता है, ठीक है, डजन बनाना लेता है, मेलन्स लेता है, ये सब लेके वो अपनी फैमिली को बोलता है गुड बाय, मैं जा रहा हूँ लिम्पू रिवर के पास ये पता लगाने कि क्रोकोडाइल क्या खाता है और कैसा दिखता है। और क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था क्रोकोडाइल, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ओके, हु वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट? गोलू। ओके, ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड, ठीक है, अब आगे वो पाइथन से मिलता है। पाइथन आपको पता है ना क्या होता है? टाइप ऑफ अ स्नेक। वेरी गुड, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? पाइथन से पूछता है क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? ठीक है, आपको इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या आया? अनकॉइल्ड। ओके, uncoiled. Is it clear to you? Yes ma'am. Okay. अब देखिए, अनकॉइल का मतलब होता है खुद को स्ट्रेट करना। जैसे आपने देखा होगा जो स्नेक होता है वो पेड़ से लिपटा हुआ था ना, गोल गोल कॉइल के शेप में, तो कॉइल की शेप में लिपटा हुआ था, और अन लग गया मतलब वो अनकॉइल्ड हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है? हाँ, यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branches again and said goodbye. अब यहाँ तक हमने क्या जाना कि गोलू जो है वो रास्ते में पाइथन से मिलता है। पाइथन जो है वो ब्रांच से, ट्री के ब्रांच से कॉइल्ड हुआ रहता है, और उससे वो पूछता है कि आपने क्रोकोडाइल देखा है, आपको पता है वो क्या खाता है? तो जो स्नेक होता है, जो पाइथन होता है, वो खुद को अनकॉइल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो गोलू भी कुछ नहीं बोलता है, उसको फिर से पेड़ पे लपेटने में, कॉइल होने में हेल्प करता है, और वहां से गुड बाय बोल के आगे बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गोलू मीट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब क्या होता है, हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे क्या जानेंगे कि गोलू इसमें आगे क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है, ठीक है। ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड द इट मोस्ट। गोलू ग्रोस अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। अब हम आगे 3 चीज जो हमें हिंट मिली है कि गोलू जो है क्या है, वो फेस टू फेस क्रोकोडाइल को मिलता है, ठीक है। और सेकेंड चीज क्या होती है कि पाइथन जो है वो उसको हेल्प करता है, ठीक है, जब उसको आगे जरूरत पड़ेगी, और गोलू की जो नोज थी वो ट्रंक में बदल जाएगी। आगे हम स्टोरी में ये जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस मैम। 3. Golu moved on, eating sugar canes, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpu River. On the bank of the river, he saw a log of wood. ठीक है, अब क्या होता है कि गोलू जो है वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, वो शुगर केन, बनाना, मेलन्स खाता है, और लास्टली वो लिम्पू रिवर के एज पे पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है? रिवर के, लिम्पू रिवर। हाँ, लिम्पू रिवर को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वो जब लिम्पू रिवर पहुंचता है तो उसको पानी में एक तैरता हुआ लॉग दिखता है, लकड़ी का। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। ठीक, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। ठीक है, क्रोकोडाइल होता है जो उसको आंख मारता है, विंक करता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सेड द गोलू, और उसे देख के गोलू पूछता है, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? तो क्रोकोडाइल को ही देख के, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, तो वो सोचता है ये क्या होता है, उसको लगता है एक लॉग है वुड का। ठीक है, तो उससे पूछता है कि क्या आपने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? ठीक है, द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। अब ये देख सुन के क्रोकोडाइल जो होता है वो फिर से आंखें मूंदता है, हाँ, और क्या बोलता है कि
Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask so much question? वो बोलता है कि यहाँ आओ छोटे, और ये बताओ तुम इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो, ठीक है? Because I want to know. Come close, little one. I want to know कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये गोलू बोलता है, ठीक है? Come close, little one, for I am the crocodile, and he shed crocodile tear to show it was quite true. ठीक है? तो जो क्रोकोडाइल होता है वो अपनी मगरमच्छ वाले आंसू निकालता है और बोलता है यहाँ आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, ठीक है? Now, Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." ठीक है? तो गोलू डरा हुआ तो रहता है, ठीक है? गोलू डरा हुआ तो रहता है, लेकिन उसे जानना रहता है, ठीक है? तो वो बोलता है, डर के वो बैंक रिवर के पास में जाके बैठ जाता है, किनारे पे बैठता है नदी के, और बोलता है, मुझे आप ही की तलाश थी, मुझे जानना था कि आप डिनर में क्या खाते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग फर्दर. Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. Golu put his head down close to the crocodile's knot, and the crocodile caught him by the nose. I think, the crocodile said, today a baby elephant will be my dinner. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed Golu. Okay, so क्या होता है जब गोलू बोलता है कि मुझे बताइए आप खाने में क्या खाएंगे, तो क्रोकोडाइल क्या बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में विस्पर करूंगा, मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोलूंगा कि मैं क्या खाता हूँ. तो ये सुन के गोलू जो होता है अपना जो बल्गी सा नोज है, स्नॉट है, ठीक है, वो उसको नीचे करता है ये जानने के लिए, सुनने के लिए क्या खाता है. और जैसे ही वो क्रोकोडाइल के पास झुकता है, क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या बोलता है कि मुझे लगता है मैं आज डिनर में एक बेबी एलिफेंट खाऊंगा, ठीक है? और जैसे उसको पकड़ता है तो उसको दर्द होता है गोलू को, ठीक है? तो गोलू बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, यू आर हर्टिंग मी, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या होता है. सो देखिए यहाँ पे एक आपको हार्ड वर्ड मिला, दैट इज स्क्रीम्ड. क्या आपको स्क्रीम का मतलब पता है? नो मैम. नहीं पता? ओके, so I will write it for you. Scream. Scream. Is it clear to you? Yes ma'am. Scream means cry. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं. Okay. The python, who had been seen quietly, following Golu, come to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." Golu sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. Okay, we came to know two more difficult words in this, that is haunches. I will explain you. And second one is creamy. अब हम क्या देखते हैं कि ये जब उसको पकड़ लेता है क्रोकोडाइल, ठीक है, तो वो बोलता है गोलू कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल छोड़ता तो नहीं है. अब ये सब चीज पाइथन देखता रहता है, पाइथन उसका पीछा करता है क्रोकोडाइल, ठीक है, गोलू का. तो पाइथन जब देखता है कि वो मुसीबत में है, तो पाइथन उसको बोलता है कि गोलू खुद को खींचो, ठीक है, उससे छुड़ाने की कोशिश करो, नहीं तो ये तुमको पानी में अपने साथ खींच लेगा, और एक बार खींच लिया तो फिर वो खा जाएगा उसको. तो ठीक क्या होता है कि इसको देख के गोलू डर भी जाता है, और गोलू
जो होता है एलिफेंट जो होता है, हॉन्च का मतलब होता है पार्ट ऑफ द हिप, जो एलिफेंट्स के हिप का पोर्शन होता है वो बड़ा सा होता है, ठीक है, तो वो बैठ जाता है, ठीक है, मड में और खुद को खींचने लगता है, और वो जो मड होता है वो क्रीमी होता है, फुल ऑफ बबल्स, ठीक है, दलदल टाइप का होता है साइड में रिवर्स के, तो अपने आप को खींचता है, गोल उल्लू यहाँ से खींच रहा है, ठीक है, अपना जो नोज है उसको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और क्रोकोडाइल उसको इधर से खींच रहा है, ठीक है, तो पुल एंड पुल दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug into his foreleg in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. अब क्या होता है कि गोलू खुद को 3. तो अभी तक आपको समझ में आया इतना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पाइथन होता है वो खुद को कॉइल कर लेता है, खुद को गोलू के पेट में अपने आप को रोल कर लेता है, समझ में आया आपको कॉइल yes, करना है, ठीक है, और वो उसको खींचता है अपनी तरफ ताकि, और बोलता है कि लेट्स पुल हार्डर। हार्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हार्डर मतलब होता है फोर्सफुली। वो पाइथन जो है वो गोलू को बोलता है कि चलो हम लोग दोनों मिलके लेट्स पुल, हम लोग हार्ड खूब कस के खींचते हैं अपने आप को इस तरफ, और क्रोकोडाइल अपने आप को उधर खींच रहा था, ठीक है, क्यों खींच रहा था कि गोलू पानी में गिर जाए तो वो उसको खा जाए, ठीक है। तो ये गुत्थम गुत्थी चलती रही दोनों में, ठीक है, और फिर क्या होता गया कि धीरे धीरे जो गोलू की नोज थी वो धीरे धीरे 5 इंच तक लंबी होती गई। कितनी इंच तक लंबी हो गई? 5 इंच तक। और फाइनली 5 इंच तक लंबी तो हो गई और गोलू को बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन फाइनली जो क्रोकोडाइल था वो छोड़ देता है, उससे फिसल जाता है, ठीक है, गोलू फिसल जाता है और गोलू ऐसे बच जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limbu River to cool. Golu sat there for 2 days, waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but did not shrink. ठीक है, तो क्या होता है कि गोलू जो है वो उसका जो नोज होता है वो दर्द करता रहता है, वो होता है, तो वो क्या करता है अपने नोज पे बनाने का पत्ते को रैप कर लेता है, ठीक है। रैप करने के बाद वो वहाँ बैठ जाता है लिम्बू रिवर में, पानी बहता हुआ पानी, उसमें अपनी सूंड को डाल के बैठ जाता है और सोचता है कि ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे 2 दिन हो जाते हैं। अब उसका जो नोज है वो ठंडा तो हो जाता है लेकिन श्रिंक नहीं करता है। वो सोचता है कि श्रिंक करके छोटा हो जाएगा, लेकिन श्रिंक होता नहीं है, वो उतना ही लंबा रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब दूसरे दिन के खत्म होते होते, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू, ठीक है। व्हाट डज स्टंग मीन? ओके, आई विल राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड। ओके, स्टंग, स्टंग मतलब डंक मारना। आप देखते हैं ना जैसे मधुमक्खी डंक मारती है, yes, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रही हूँ और इंग्लिश में भी। सो गोलू जो बैठा रहता है, ठीक है, सेकेंड डे के लास्ट में क्या होता है, एक फ्लाई आता है और गोलू को डंक मारता है उसके शोल्डर पे। अब क्योंकि उसकी नोज जो है अब वो लॉन्ग हो गई होती है, तो वो क्या करता है, उस नोज जो लॉन्ग हो गई है, उस लॉन्ग नोज से वो उसको जैसे ही उस मक्खी को हटाता है अपने नोक से ऐसे मारते है, तो वो मक्खी मर जाती है, गिर के मर जाती है, ठीक है। अब इसको देख के आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, you could not have done it with a small nose. Try and eat a little now. ठीक है,
अब जो पाइथन होता है वो समझाता है कि गोलू, अगर तुम्हारी नोज जो है वो पहले की तरह छोटी होती तो क्या तुम ये कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। फिर बोलता है आप कोशिश करो कुछ खाना खाने की। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। Golu put out his trunk and plugged in a large bundle of grass. He dusted it against the his foreleg, and stuffed into his mouth. ठीक है, आपको समझ में आया? गोलू क्या करता है, अपना ट्रंक जो होता है वो एक बड़े से ग्रास के बंडल को अपना नोज वो उठाता है। ठीक है, जैसे हाथी उठाते हैं, और बड़े से ग्रास का जो बंडल है उसको एक बार में उसको खींच के अपने मुंह में भर लेता है। ठीक है। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। अब इसको देखिए, पाइथन बोलता है कि यू कुड हैव नॉट डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ कि अगर दूसरा एडवांटेज पाइथन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारी नोज पहले जैसी छोटी होती तो क्या तुम ये कर पाते? नहीं। फिर क्या बोलता है पाइथन कि तुमको नहीं लगता कि बहुत गर्मी है? ठीक है ना। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. Advantage number 3, here's the python. You could have not done it with a small nose. ठीक है, गोलू scooped up. What does scoop mean? This is scooped. Okay. To take out on image. अब क्या होता है कि जो गोलू होता है वो थोड़ा सा मड जो है बैंक की साइड से लेता है। ठीक है, नदी के किनारे से थोड़ा सा मिट्टी लेता है और वो मिट्टी लेके अपने हेड पे वो रख लेता है। ठीक है, तो वो मिट्टी अपने सिर पे मर लेता है। उससे क्या होती है, उसको जो सन की हीट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है, इसको देख के जो पाइथन होता है वो बोलता है ये तीसरा एडवांटेज हो गया, अगर तुम्हारी नोज छोटी होती तो तुम ये भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में गोलू क्या बोलता है। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली मीन्स thankfully. Okay, I will remember all this and now and I'll go back to my family. मैं ये सब याद रखूंगा और मैं आपका हमेशा आभारी रखूंगा और अब मैं अपने घर जाऊंगा। ठीक है, so gratefully, what does this mean? Gratefully means thankfully. मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंकफुली? थैंकफुली मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आप समझिए कि मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। ओके, अब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, तो आप थैंक यू बोलते हैं ना? Yes, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उसी का एक दूसरा सिनोनिम में होता है वर्ड ही ग्रेटफुली। ठीक है, आपको ये लेसन समझ में आया? यस मैम। आपने इसको एंजॉय किया? Yes ma'am. Okay, very good. So I hope this lesson is clear to you, and for homework you have to revise this lesson and you have to write an essay on elephant. Okay, okay student? Okay. Thank you.